we are hearing that this is a dark comedy as well as a murder mystery. सो डार्क कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री का ये क्या कैसा कॉम्बो है? कैसी ये पहेली? आपका नाम है कैसी ये पहेली, लेकिन कैन यू डिकोड इट फॉर अस? Um, I think there are a lot of elements why people are, or you would want to say it's a dark comedy or a murder mystery, but at the core of it, it's a story of an estranged relationship between a mother and a son. So at the core of it, emotionally, it's that, and that is what pulls me in. Of course, the genre talk is interesting, and wo hai, and Ananya Brata was the director. He uh, a lot of it comes from his roots and from his life, and the whole idea of detective novels and the branding of Vyomkesh Bakshi or Ray's novels or Feluda, and so it's all there. It's a very interesting world, but at the core of it, the mother-son relationship is, I feel, the main thing. There is something about some of the roles that you have chosen in the past, like for example काला पानी का हो यहाँ पे. So one role that I really liked was मोनिका ओ माय डार्लिंग. प्लस एक जो दोबारा में जो एक कैरेक्टर प्ले किया था, तो आपका मैं क्या देखता हूँ कि एक पता नहीं आपका पर्सनल लाइकिंग है या वो एक कैरेक्टर का कुछ नेचर निकल के आता है, वो डार्क साइड में थोड़ा सा टेंड करता है जाने का. और वो आदमी हम्म ऐसा होता है कि जो दिख तो अपने जैसा रहा है, लेकिन उसके कार्डिनल वो इंस्टिंक्ट्स बहुत अलग हैं. हम्म तो ये कैसे रोल्स में आता है? लाइक इज देयर एनी लाइक व्हाट इज योर बेसिकली व्हाट आई वांट टू नो कि क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस उसको डिराइव कर रहे हैं? हम्म First of all, the script. Matlab, if the script is presenting that to you, then it's good. It's already interesting. Writer has imagined it, and then the director has added to that imagination. So you have a lot of material before you enter. It's not like my idea of acting or मैं इस character को ऐसा या वो. There are a lot of things that have guided you already. And then it's how you are as a person, how you see these things, and I find them interesting because they're so human. Like, आई मीन मतलब मैं अपने आप को भी देखता हूँ तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डार्क साइड टू मी आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ things that I don't do which are maybe socially right or acceptable or I've hurt people, I've caused them trouble, uh, and then there are references like actors are also detectives. They do a lot of detective work, constantly observing people and without them knowing it. So there's a lot of things you pick up, but I don't know. It's not like I chose all these parts, Rohit. मतलब मैं उस जगह नहीं हूँ कि मैं बैठ के स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ. नहीं नहीं, मैं The directors chose also, and I think it's a lot of credit to them to believe that I can do this. नहीं, मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है इस पर. व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अच्छा. एवरीथिंग, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि आपके हिसाब से डायरेक्टर वो आप में वो क्या देख रहे हैं, ऐसा क्या दिखता हम्म है कि ये जो काला पानी वाला स्पेशली जो रोल था, वो तो कई बार समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, इधर जाना चाहता है, उधर जाना चाहता है, वो बहुत ग्रेइश है. तो वो सो एज एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, कुछ वाइब भी तो होती होगी. don't know that they will answer what they see. If they see that, I mean, I find it interesting to do where there is something which isn't so clean and matlab, you don't know whether you like the person or not. You are divided. And I think that is true for all of us. There are so many people who like us, so many people who don't like us, and we have divided people by being us. So I think these characters are very human, matlab, and if they think that I can do it because I find them interesting, I really don't know उन लोग के दिमाग में क्या है, उनको क्यों ऐसा लगता है. मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि उनको ऐसा लगता है. मुझे करने को मिलता है. अच्छा, अब I मैं really इसको don't. I don't know. थोड़ा सा और वो करता हूँ, आपके बारे में जानने की कोशिश कि आपके पसंद के टॉप 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं? जो फ़िल्मों में ऐसे जो सबसे पसंद के सबसे ऊपर के टॉप 3 कैरेक्टर्स हैं। देखें कि आपका पर्सनल चॉइस किधर जा रहा है। That's very difficult, yeah. Rohit. How to pick that? मतलब
मैं 3 रुकूंगा, फिर दोपहर में मुझे लगा यार ये नहीं बोला, वो नहीं तो बोला, आप बोलो अच्छा ना, ठीक आप है, 6 मतलब बोल दो। ये बोल दो। मैं बोल देता हूँ, वो जो अर्ली इन्फ्लुएंसेस थे जो मुझे, जिन्होंने ऐसे बचपन में मुझे मजा दिया था, बहुत ही पॉपुलर वाले ही हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब मैंने हाफ टिकट करके एक पिक्चर है किशोर कुमार की, कॉमेडी फिल्म हम्म। है, वो मैंने हजारों बार देखी है। तो मुझे वो पसंद था। मुझे लाइफ इज ब्यूटीफुल मैंने जब देखी तो मैंने कई बार देखी, और मुझे रोबर्टो बेनिनी का वो परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। या फिर मैं कोहेन ब्रदर्स की फिल्म्स देखता हूँ, जो वासन ने मुझे बोला था देखने के लिए, फॉर मोनिका और माय डार्लिंग। मैंने बहुत सारी वो देखी, तो मुझे उसमें वो सारे डिपिक्शन ऑफ पीपल पसंद आए। ऑफ कोर्स नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में हार्वे बार्डन की परफॉर्मेंस है, या मतलब जहाँ पे भी, कल रात को मैं निशांत देख रहा था फिर से, बहुत टाइम बाद। हम्म। उसमें कोई कैरेक्टर को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है, या सबकी अपनी मजबूरियां हैं, और यस। सब अपनी कंडीशनिंग के। तो वो नसीर का जो कैरेक्टर है, उसका रिलेशनशिप शबाना के साथ, शबाना का गिरीश कर्नाड के साथ, ये इतने इंटरेस्टिंग, इतने ह्यूमन है कि मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे चुनने की जरूरत है कि इनकी अच्छाई क्या और बुराई क्या। दे एंगेज मी बिकॉज आई फाउंड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बट आई अंडरस्टैंड दिस, एंड आई गेस दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी लेटर इन लाइफ। बट अर्लियर तो यही सब था, मुझे बहुत पसंद आई थी वो मोहरा। और सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन था। मैं भी मैं तो अभी भी हूँ। अभी भी हूँ, तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। बट या दीज आर सम ऑफ द फिल्म्स दैट आई हैव रिपीटेडली सीन, लाइफ इज ब्यूटीफुल, और से शिंडलर्स लिस्ट, और से ब्यूटीफुल माइंड। बट लाइक यू कैन सी दैट आई वुड लव टू प्ले समथिंग एज सिंपल एज ब्यूटीफुल माइंड में जो इसका कैरेक्टर है, साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट का। माय गॉड, द साइंटिस्ट, द मैथमेटिशियन। It's such a silent, such a reserved, but such a passionate part. रसेल क्रो वाला पहला पार्ट कैरेक्टर। कैसी है पहली में, रसल क्रो वाला कैरेक्टर। तो ऐसा कुछ, मतलब I, ऐसा कुछ, there is no anything that is engaging and challenges human thought and emotion is what I enjoy. And I think doing theater and working on all these scripts by these wonderful writers, you get drawn more and more to that kind of like character work, and not like block characters, simple. Even say in a farce, कुछ character बहुत interesting because overall the story is saying something very interesting. So मतलब why do we like जाने भी दो यारो so much even now? हम लोग क्यों पागल जाते हैं उसके पीछे? मतलब it's the form and the writing. Of course there are performances, but मतलब how will it be if we ask Nasir to choose between that and Spurs? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बट एक चीज आपने देखी है ना? कि आपने जो भी हाँ। कैरेक्टर्स अभी बताए, अपार्ट फ्रॉम लाइक मोहरा हाँ। और ये सब, वो सब बहुत ही ह्यूमेन है। अम, हाँ। जो जो मतलब यस। उसमें एक आदमी है जिसका लाइफ का एक मोटिव है, लेकिन वो और भी उसके आयाम है। यस। यस। आक्रोश में रामपुरी का कैरेक्टर, मतलब 3-4 लाइनें हैं उनकी टोटल, और बाकी टाइम गोविंद निहलानी ने उनको मतलब इतना क्लोजअप में कैप्चर किया है पूरे टाइम। इट्स रिवेटिंग सिनेमा, रिवेटिंग। और आई वाज लाइक, और इसमें फिल्म मेकर का बहुत बड़ा योगदान है। रामपुरी वाज देयर प्रेजेंट, knew what he was doing or maybe didn't know, हाँ, but उसको he किस was एंगल trying से कैच something. किया जा रहा है उनको शायद ना मालूम हो। कौन सा शॉट कब लगा दें, उस पे साउंड क्या है, मतलब इट्स सच अ कोलैबोरेटिव मीडियम, एंड 3 स्टेप्स में पूरा सिनेमा बन जाता है, राइटिंग, डायरेक्शन एंड एडिटिंग। That as an actor, I feel like in that moment, in that time, in the scene, I need to fit into what this person wants me or is looking to excavate from the scene. And what is it that I can use from all my faculties and understanding to deliver that? Beyond that, I cannot try to control the what the film is being made. In theater, I can do that a lot as an actor, but in film, I can't. So उसका भी एक फन है नॉट नोइंग का। जो एक एक्साइटमेंट है कि क्या निकल के आएगा। या ऐसी भी चीजें मैंने की हैं जो मुझे बनते वक्त समझ में आ गया कि ये मैं देखना नहीं चाहूंगा। अच्छा, ऐसा भी हुआ। मुझे इसमें समझ में आ गया क्या, हाँ, कि क्या बनने वाला है, मुझे पता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट
जब आप ऐसी चीज करते हो, जब आप बनते हो, आपको लगता है यार ये मैं देखना चाहूंगा कि ये क्या बनने वाला है, देन इट बिकम्स समथिंग लाइक फन, उसमें रियली अपने अंदर का इंटरेस्टिंग। एक्टर चैलेंज होता होगा ना कि मेरे को पता नहीं है ये विजन के या कितना क्लोज जा पाएंगे। आई एम एन एक्टर एंड आई एम एन एंटिसिपेटिंग ऑडियंस बोथ, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिएटर और फिल्म, आप कहते हो कि थिएटर में कंट्रोल कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, ऑडियंस के रिएक्शन को। हालांकि ये इतना आसान, अच्छे एक्टर्स कर मतलब वो कर नहीं, सकते हैं, हाँ, इतना आसान नहीं है। नहीं इतना सोचना भी नहीं चाहिए, नेवर बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, हाँ, तुरंत स्टेज आपको गिरा देगा मुंह पे। तो उसमें क्या एकदम से आपको तुरंत रिएक्शन का एंटिसिपेशन हो जाता है कि अच्छा ये जो मैं रिएक्शन समझ रहा हूँ ऑडियंस का, ये एग्जैक्टली वैसा ही है? या ये भी तो हो सकता है कि ऑडियंस कुछ और रिएक्शन दे रहा हो और एक्टर पकड़ ना पा रहा हो? फर्स्ट शो में तो आपको पता ही नहीं होता क्या होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट शो से पहले वही लोग आपको देख रहे हैं पिछले 2 महीने से सामने बैठ के, डायरेक्टर, डायरेक्शन टीम या जो भी, and they know the play, so they're seeing it differently and they're seeing your performance differently, and you're also trying to please them every time to say that look how fresh this is looking or not. But the first time audience is a different thing only. You can never say कब कहाँ क्या होने वाला है. Sometimes the director will know, I know यहाँ पे there will be a reaction, I know it. तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि परफॉर्मर जिस लेवल पर एक कैरेक्टर आर्क को समझ रहा है और डायरेक्टर और ऑडियंस उस हिसाब से रिस्पॉन्ड ना करें, मे बी दे आर नॉट येट इवॉल्व टू अंडरस्टैंड दैट, व्हाट डू यू डू इन सच सिचुएशंस? ऐसा होता तो होगा ही कि थोड़ा सा डाइल्यूट करना Nothing. पड़ेगा। I mean, if it's my decision, then I just try to do what is required in the scene as much as possible. I cannot control how somebody will feel. Of course, आप सोच रहे होते हो कि ये कैसा क्या, because when you're making a play or a film, you're also thinking कि क्या ट्रांसफर हो रहा है बाहर, मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें मजा आ रहा है, और दिस इज ग्रेट, मैं इस समय पानी पी लूंगा, या इस समय मैं लाइन बोल दूंगा, या इस समय मैं देखूंगा नहीं, या मैं, बट उससे ट्रांसफर क्या हो रहा है, क्या हम, दैट इज ऑल यू कैन कंट्रोल, and you can be honest about that. And I feel like despite all the noise, nonsense, anticipation, what is it going to become, if you can be honest at that time about what you're trying to transfer, that's what you can do. मतलब आई डोंट नो कि कैसी है पहली जैसी फिल्म, जब ऐसा सवाल आता है कि कैसा रिसीव होगा, क्या ये कुछ अलग तरह का सिनेमा, मुझे नहीं पता, लाइक is it falling into the OTTs? I really don't know. It's a story. Somebody has told it in a way. And we tried in most moments to see if we are able to transfer what we are trying to do. The camera person also, the art person also, the sound person also, the actors also, the director also, and the writer also. That's all like you can really do. And I think I have some sort of peace about that today. ऐसा भी तो होगा ना कई बार कि एक सीन का आपका अंडरस्टैंडिंग एक अलग तरह का है, एंड यू आर रेडी टू ट्रांसफर दैट एनर्जी, दैट अंडरस्टैंडिंग टू द स्क्रीन, लेकिन जिसके साथ एक्टिंग कर रहे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सुपरफिशियल है उस सीन का या अलग ही है। तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू सच सिचुएशन? इसमें तो काम अपना भी खराब होगा ना। नहीं, नेगोशिएट करना पड़ता है, फिर वो लाइफ की बात हो जाती है, फिर देन इट्स लाइफ, यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू फाइंड अ वे, यू ट्राई, समटाइम्स यू फेल, यू हैव टू फाइट द बैटल्स दैट यू वांट टू फाइट उस समय, एंड द डायरेक्टर इज द पर्सन हु हैज टू फाइंड कि भाई मेरा सीन बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैं क्या बोलूं। तो ये तो लाइफ चैलेंज है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सिनेमा, हमको लगता है हम आर्ट बना रहे हैं, कुछ दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कुछ नहीं है। पहले आदमी से तो डेली लेवल पे नेगोशिएट कर आप लो। संघर्ष करना है, डेली लेवल पे, तो वो है एक्चुअली। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन होती है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उधर एक ईगो भी है कि तेरे को क्या समझ में आ रहा है, तेरे को क्या लगता है, तेरे को ही समझ में आता है, ठीक है, कुछ होगी समझ, कैन यू वर्क इट आउट, कैन यू फाइंड अ वे, हाउ डू यू नो दैट योर आइडिया ऑफ द सीन इज द आइडिया एंड यू हैव अंडरस्टूड, टुमारो आई विल फील लाइक ओ उस समय जो मुझे समझ में आया था वो तो रत्ती भर का भी नहीं था, अब मेरे को एक्चुअली समझ में आ रहा है, तो मैं उस पर क्या इतना गुस्सा हो रहा था। तो ये दिस इज नेगोशिएशन मतलब, एंड आई एम श्योर कि हर डायरेक्टर को ये करना पड़ता है, मैन मैनेजमेंट इज अ बिग पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इसमें से कौन सा ऐसा रोल था जो लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है भाई, मतलब इसमें वो जो डायरेक्टर चाहता है विजन लाना टफ है? शुरू में तो सब इतने मुश्किल लगते हैं कि मुझे लगता है मैं मना करके भाग जाऊं,
मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये, पता नहीं इसको क्यों लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ. My first instinct is to run away and be scared. But then you enter, and then, yes, a lot of things. Actually, the most difficult film process that I have gone through is a film called The Earth Was Made for Lovers. शिशिर झा करके एक डायरेक्टर, उसने एक इंडी फिल्म बनाई है, which was unscripted, two actors. जिसने It's a सॉन्ग ऑफ love द story. टॉर्टोइज बनाई. Yes, 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 correct, correct. Tortoise Under the Earth. टॉर्टोइज इन द. Yes, so this is fiction, and I enjoyed it thoroughly because it was improvised dialogue throughout the film, feature film, drawing from your life, everything, and trying to make scenes out of it. Sirf scene cards थे, and 20 days maybe we were a small crew of 10 people. And I found it so difficult to be so naked and vulnerable to perform those scenes and draw out everything from inside and make it work. पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है. But it was thoroughly enjoyable, thoroughly uh, like मतलब पर्दा खोल दिया, ऐसा लगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता वो समझने के लिए कुछ. और उसका क्या होगा फिल्म का मुझे नहीं पता, बट वो वो डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था. सबकी अपनी डिफिकल्टीज थी, काला पानी की भी, मोनिका डार्लिंग की भी. इवन संदीप वर्किंग की फॉर द टू सीन्स राइट वगैरह, मतलब बट वो इट्स वो दोनों सीन्स इंपॉर्टेंट तो थे फिल्म के लिए, मतलब वो कहानी तो या बदली है वहाँ. या आई रियली थिंक कि वो राइटर का कमाल है कि उसने ऐसा इमेजिन करके वो स्क्रिप्ट में इस तरह डाले, and gave me so much to do on that. And Dibakar also like mad, So he, it was in service of their vision. But this one was a lot of drawing out yourself and making it. It was very difficult, but I enjoyed it. I want to do that again.